2014 में एप्स्टीन के घर पर डिनर पार्टी हुई, उसमें हरदीप पुरी गए थे। तब तक दुनिया एप्स्टीन के अपराधों के बारे में ठीक से जान गई थी। इस तरह की डिटेल आने लगी थी कि एप्स्टीन ने अपने दोस्त प्रिंस एंड्रयू के लिए तस्करी से लाई गई नाबालिग लड़कियों को उपलब्ध कराया है। तब भी हरदीप सिंह पुरी उसके घर डिनर के लिए गए और कहते हैं उसके यौन अपराधों से लेना देना नहीं था। इस हिसाब से तो ये दाऊद इब्राहिम के घर कबाब खाकर आ जाएंगे और कहेंगे मैं तो केवल कबाब खाने गया था, मेरा दाऊद के कारनामों से कोई लेना देना नहीं। मुझे एक बात बताइए, क्या काबिलियत थी हरदीप पुरी में कि अचानक आपने उनको पहले तो इंडिपेंडेंट चार्ज का मंत्री बना दिया। बेचारा वो डिजिटल इंडिया प्रमोट कर रहा था, आपने तेल मंत्री बना दिया। काबिलियत क्या थी? सांसद बाद में बनाया, मंत्री पहले बना दिया। काबिलियत तो बताइए मुझे। दबाव था? किसका दबाव था? किसके इशारे से इनको मंत्री बनाया गया? नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा। He owes it to the country. Why was Hardeep Puri, I'm sorry, I repeat, with due respect to him, a below average diplomat? I'm just quoting his own colleagues, his seniors. Why was he being used? In what capacity between 2014 and 2017 before he became the minister in the cabinet? Why was he being used by the government? And if he was not being used by the government, under whose authority was he operating and interacting with Jeffrey Epstein? So there is circumstantial evidence, Sanjeev ji. There is circumstantial evidence which points the needle of suspicion only in one direction. मेरी स्वर्गीय मां कहा करती थी, बेटा एक झूठ को छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, इसलिए तुम झूठ तभी बोलना जब तुम्हारे झूठ बोलने से किसी निर्दोष की जान बच रही हो। मैंने उनकी बात को तभी गांठ में बांध लिया था। फिर क्या प्रधानमंत्री मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, इनके संगी साथी, इनके शिष्य, इनकी ब्रिगेड, इनके मंत्री इस बात को नहीं जानते होंगे? क्या इनकी माता ने इन्हें नहीं बतलाया होगा बचपन में? इसी बात को कि झूठ तभी बोलना जब तुम्हारे झूठ बोलने से किसी की जान बच रही हो। अगर महिला अस्मिता की बात आ रही हो, लुटने की, बच्चियों को नोचने की, तब हरदीप पुरी झूठ बोले तो यह शोभा नहीं देता। Telling you about. So this December email, there are a couple of words which are being marked out in particular. I'll just for the benefit of our viewers, let me tell the sequence of events. So first, you wrote to Jeffrey Epstein on the 24th of December. You said season's greetings. Please let me know when you're back from your exotic. No, that I have an expression I use with everybody. I have some people who are well-to-do people. Which exotic place are you in? No, because that is the suspicious island, or that is the island where all the misdemeanors took place. That would be. But I also said, where are you? Which exotic place are you in? Don't read any meaning into that. In any case, I'm asking because there is a discussion to be held, okay? And that is the part of the context of the discussion. Okay, because then when he writes back saying, I was writing you, amazing, I spoke to Reed, you reply at 6:17 p.m. and you say, indeed, telepathy, give me a shout when you are back and have fun, not that you require encouragement from others for that. Yeah. The Congress is saying this indicates that there was I knew by that time, 2014-15, I knew. So what you have fun means what? It's. I mean, listen, the Congress is capable of anything. Mr. Rahul Gandhi goes on trips to Vietnam. But what kind of fun? I have no clue. Listen, he is not a personal acquaintance of mine that I'm asking what kind of fun. Mine is not that kind of relationship. I've never been to that island. He's never been to my house, etc. I am talking about Reid Hoffman. Reid Hoffman is the founder of LinkedIn. So that's it. Okay, but there was no knowledge that you had what was going on that island when you speak of exotic island and fun. No, all this came out much later. ये ना तो सिख धर्म का सम्मान है, ना ही हिंदू धर्म का, ना ही किसी और धर्म का. Even an ordinary citizen would refuse to meet, let alone drink coffee with a man the world knows as a serial rapist, child sex offender and human trafficker. But not Hardeep Puri, Modi's minister, whose name appears multiple times in the Epstein files. And when exposed, what did Puri do? He rushed to a press conference and admitted, I met Epstein with a delegation.
But the emails tell a very different story. Let's start from June 2014. Epstein himself confirms Hardeep Puri's presence in a private meeting. Soon after, on 4th of October 2014, Epstein is arranging meetings for Puri with LinkedIn CEO Reid Hoffman and advising him. 5th of October 2014, Epstein casually asks Puri, "How did it go?" Puri replies, "It was good. I'll explain more when we meet." Note, when we meet. What happened next should have sounded alarm bells. 24th of October 2014, Epstein emails Puri requesting an urgent Indian visa for his associate. Puri pulls all strings to get the visa arranged. And it still doesn't stop. 24th of December 2014, it gets even shadier. Puri writes to Epstein, "Have fun." And this connection continues. 2015, they have coffee plans. May 2017, emails fixing another meeting. Now the question is, why, despite knowing Epstein's deeds, did Hardeep Puri continue this association for more than 3 years? What advice were Modi, Hardeep Puri and their close associates seeking from a known sex offender? And an even bigger question, after admitting these meetings himself, should Hardeep Puri still remain in office? Because this isn't about coffee or having fun. It's about India's dignity, reputation and image. हरदीप पुरी थोड़े दिन पहले सिख धर्म की गौरवशाली परंपरा को, राहुल गांधी को, नेता प्रतिपक्ष को याद दिला रहा था, जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को कुछ बोल दिया था, गद्दार बोल दिया था। यह राहुल को सिखला रहा था और अब भी सिखला रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा था युवा नेता, कांग्रेस प्रवक्ता को उनके नाम को जिस तरह से ले रहा था, उन्हें अपमानित कर रहा था। सुप्रिया श्रीनाथे, ये प्रोनाउंस करना नहीं जानता, उनके नाम का उच्चारण नहीं जानता। सुप्रिया श्रीनाथ जी, इनकी एक प्रवक्ता है, उसका नाम है सुप्रिया श्रीनाटे। अच्छा, श्रीनेटे, क्या श्रीनेटे, ओके, ठीक है। साउंड द महाराष्ट्रियन नेम, आई शुड नो यार। इट्स द महाराष्ट्रियन नेम ना? नहीं, ओके, व्हाटएवर, वेयरएवर शी इज फ्रॉम। ठीक है, समझ गया। मजा नहीं आ रहा है। नरेंद्र मोदी के मंत्री हरदीप पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में 430 बार आया है और ये वो फाइल्स हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अभी तक रिलीज करी हैं। अपने बचाव में उतरकर उन्होंने कहा कि वो तो तब मिले थे जेफरी एप्स्टीन से जब उन्होंने सिर्फ इतना कबूला था कि उन्होंने अंडर एज गर्ल्स को सॉलिसिट किया था। अंडर एज गर्ल्स से यहां पर मतलब है बच्चियों के साथ वो रेप कर रहा था, बच्चियों को वो प्रोस्टिट्यूशन में डाल रहा था। और फिर हरदीप पुरी जी कहते हैं दैट्स इट, बस इतनी ही तो बात थी। मतलब इससे ज्यादा नैतिकता का गला आप और कैसे घोटेंगे? और पिछले 48 घंटे से ये व्यक्ति एक चैनल से दूसरे चैनल कूद कूद कर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे इनके जो संबंध थे एप्स्टीन से वो बिल्कुल प्रोफेशनल थे और ये असहज महसूस करते थे। हर चीज की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये जवाब नहीं दे रहे कि ये जानने के बाद कि ये आदमी कितने बड़े बड़े अपराधों का दोषी पाया गया था, छोटी बच्चियों के साथ रेप का, पीडोफाइल होने का, उनको सेक्स में ढकेलने का, उनकी ट्रैफिकिंग करने का, ये सब आरोपों का दोषी पा लिया गया था एप्स्टीन। और उसके बाद भी हरदीप पुरी उससे मिल रहे थे, उसके घर जा रहे थे, उसके साथ कॉफी पी रहे थे, उससे राय ले रहे थे, उसको किताबें गिफ्ट कर रहे थे, उसके साथ तमाम ईमेल्स का एक्सचेंज किया जा रहा था। इस बात का जवाब ये दे नहीं सकते हैं और ये फिर भी भारत सरकार में मंत्री बने हुए हैं। लेकिन अगर आपसे 2 हाथ आगे बढ़कर किसी ने गिरने का काम किया तो वो हिंदुस्तान का मीडिया है। सारी दुनिया थू थू कर रही है एप्स्टीन के नाम पर, लेकिन हिंदुस्तान का मीडिया आपको समझा रहा है कि हाँ वो पीडोफाइल था, हाँ वो सेक्स ट्रैफिकर था, हाँ उसने छोटी छोटी बच्चियों का बड़ा नाजायज फायदा उठाया, लेकिन वो एक पावर ब्रोकर भी था। उसकी निजी जीवन और उसके कामकाज का अंतर समझने की कोशिश करा रहा है आपको हमारा मीडिया। मतलब क्या हो गया आप लोगों को? अब क्या अगला अंतर आप ये समझाएंगे कि दाऊद इब्राहिम और मसूद अजहर और इस तरह के दुर्दांत आतंकवादियों का भी कारोबार है, उनके निजी जीवन को और उनके दुर्दांत आतंकवाद को अलग अलग देखिए। तो क्या हुआ, उन्होंने कुछ लोगों को मार दिया। और अब जिस तरह से बच्चियों को अंडर एज वीमेन बतला रहा है, कम उम्र की महिलाएं, शर्म आती है।
अरे शर्म करो। हम इन्हें बेटियां कहते हैं, बच्चियां कहते हैं, लाली कहते हैं, तुम इन्हें अंडर एज वीमेन बतलाते हो। This is minimal interaction. But if your answer is, in 2008 he was, in 2008 he pled guilty, yes, for a charge that he was soliciting the favors of a woman who was underage. That was it. The rest of these stories got to be known much later. But believe me, many of us had doubts on that. I suffered so much pain. So much pain. So much pain. I suffered so much pain. I was 14 years old. I was 16 years old. I was 16. 17. 14 years old. This is me. This was me. This is me. When I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. There are about 1,000 of us. It's time to bring the secrets out of the shadows. It's time to shine a light into the darkness. हम उन्हें देख रहे हैं, दर्द आता है कि अमेरिका में क्या हुआ, दुनिया के बड़े बड़े लोग क्या कर रहे थे, जिन्हें हम अपना कभी आदर्श माना करते थे। हरदीप पुरी, थोड़ी शर्म करो। तुम जेफरी एप्स्टीन से मिलने के लिए ललचा रहे थे, लालायित थे, परेशान थे, उसे भारतीय पुस्तकें भेंट करना चाहते थे। तुम्हें उसकी कॉफी 9 महीने तक याद रही और तुम्हारे मिलने का सिलसिला लंबा चलता रहा। सब कुछ सामने आया। हरदीप सिंह पुरी इंटरव्यू देने लगे साहब, एक के बाद एक इंटरव्यू, एक के बाद एक झूठ, एक के बाद एक, हर इंटरव्यू में झूठ। कहते हैं कि जब वो पहली बार एप्स्टीन से मिलने जा रहे थे तो उन्हें पता ही नहीं था कहां जा रहे थे। उन्हें कहा गया कि ड्राइवर पहुंचा देगा। ये देश के फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी रहे हुए हैं, डिप्लोमेट हैं, एम्बेसडर रहे हुए हैं। एम्बेसडर साहब को पता ही नहीं था कि वो गाड़ी उनको कहां ले जा रही है। भाई, आप मीडियोकर ऑफिसर रहे हैं, हम मानते हैं, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट ऑफिसर आपको कोई नहीं मानता था। सर्विस में भी आपके साथियों से हम बात करते हैं तो बताते हैं साहब मीडियोकर ऑफिसर है। अरे कितना ही मीडियोकर ऑफिसर हो, कोई आपको अगवा करके ले जाएगा, आप चले जाएंगे और कहेंगे मुझे मालूम ही नहीं था मैं कहां जा रहा हूं। लॉलीपॉप दी, बच्चे को बोला गाड़ी में बैठ जा, बच्चा गाड़ी में बैठ गया। ऐसा होता है क्या भाई? फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर रहे हुए, कुछ तो शर्म करो भाई। यहां बड़े बड़े लोग रहे हुए हैं। फिर कहते हैं मैंने गूगल किया, बड़ी बेचैनी हुई, अनईजी हो गया साहब, गूगल करके देखा मैं कहां जा रहा हूं। और फिर आपस में पूछा क्या हमें इनसे मिलना चाहिए जिनसे मिलने जा रहे हैं। ये हरदीप पुरी हैं, इंटरव्यू में बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, मैं तो सिर्फ आपके सामने चित्रण कर रहा हूं। हमने आपस में बात की क्या इनसे मिलने जाना चाहिए। हरदीप जी, सेकंड क्लास के बच्चे हो, मालूम है कहां जा रहे हो, गूगल ने बता दिया कहां जा रहे हो, ये एड्रेस किसका है, फिर आपस में सलाह मशविरा कर रहे हो। अनईजी हो, गूगल ने बता दिया कहां जा रहे हो, और फिर कहते हैं साहब हाथ में लॉलीपॉप था, जाना तो था। ये अधिकारी है फॉरेन सर्विसेज के, ये मंत्री हैं कैबिनेट के, और बहाने देखिए इनके। पहले तो पता नहीं था, पता चला तो अनईजी हो गए, लेकिन गाड़ी नहीं रुकवा पाए, किडनैप हो गए थे। फिर जो साथ में थे शायद उन्होंने कहा होगा अले बाबू बैठ जाओ बच्चे, चलो हम भी तो हैं तुम्हारे साथ, यही हुआ होगा। ये मजाक है। फिर इनको मंत्री बना दिया मोदी जी ने। फिर एक कहते हैं कि हम में से कुछ को एप्स्टीन के क्रिमिनल रिकॉर्ड पे शक था कि वो क्रिमिनल है या नहीं है। इस पर भी हरदीप पुरी कहते हैं कि हम में से कुछ लोगों को इस बात पर भी शक था कि एप्स्टीन क्रिमिनल है या नहीं। ये एप्स्टीन ने खुद 2008 में फ्लोरिडा की कोर्ट में अपना गुनाह कबूल लिया था, सजा हो गई थी। तो क्या हरदीप पुरी जी, भगवान खुद आकर आपको कहें कि हरदीप पुरी जी ये एप्स्टीन क्रिमिनल है? जिस तरह से गोदी मीडिया की एक चाटुकार बतला रही है
जिसका नाम पद्मजा जोशी है, वो जेफरी को जिस तरह से संबोधित कर रही है कि वो एक सत्ता का दलाल था और दूसरा पीडोफाइल था, इस तरह से परिभाषित करना बंद करो। Jeffrey Epstein was convicted of major crimes like pedophilia, of rape, raping underage girls, all of that. But the fact also is that he had a separate life. Professionally, he was a power broker. He used to introduce one person to the other. It was his job to keep track of what is happening in the corridors of power, and any mention by him of any individual doesn't mean that that individual naturally was going to his island or was involved in any kind of sexual crime. अपने मंत्री को बचाने के लिए, अपने प्रधानमंत्री को बचाने के लिए, प्रधानमंत्री का करीबी दोस्त अनिल अंबानी जेफरी से मदद मांग रहा था कि लीडरशिप आपकी मदद चाहती है। अब एप्स्टीन फाइल्स के पन्ने जिस तरह से खुल रहे हैं, सब कुछ सामने आ रहा है। सत्ता पक्ष में खिसियाहट है, राहुल गांधी को लेकर के नाराजगी है, ये राहुल पर टूट पड़े हैं। निशिकांत दुबे जैसी बातें कर रहा है, उनकी सांसदी छीनने की बात कर रहा है, झूठे आरोप लगा रहा है। एक सच को छुपाने के लिए तुम क्या क्या करोगे? हरदीप पुरी सामने आओ और इस्तीफा दो। इस्तीफा तो मोदी का भी होना चाहिए, क्योंकि ये तो राम की बात करते हैं, मूल्यों की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, मगर इनके समय में जितना महिलाओं का अपमान हुआ है, जिस तरह से महिला अस्मिता लुटी है, बलात्कार सत्कार हो गया है, भ्रष्टाचार सदाचार, वैसा इतिहास में कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रिया मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने मंच अरविंद दिल से पर। नमस्कार।